So he used to take the old weapons, जैसे कोई गन होगी, कोई तोप होगी, उसका जो Okay. बैरल होता था उसको निकाल के ही यूज टू यूज इट इन द ट्रक डिफरेंशियल. सो उससे ऐसी जिनके भी डिफरेंशियल लगाए जाते थे, ऐसा हो गया था कि सो व्हेन माय ग्रैंडफादर केम इनटू दिस बिजनेस, उनकी एक छोटा सा कारखाना होता था, हम्म, स्मॉल शेड, जिसके अंदर वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करते थे. हम्म. सो अब नाउ वी हैव रफली 1600 एम्प्लॉइज ऑल अक्रॉस इंडिया. सो हमारे पास दो एम्प्लॉइज हैं. सो बेसिकली दे आर फ्रॉम द कमर्शियल टीम. Okay. One is Mr. Nishant and one is Mr. Gulshan. Mm-hmm. So these two players are very team के head हैं. IP Singh, so he is also very well capable Okay. to handle the, क्योंकि engineering drawing is the map of success in mechanical engineering. So that was a game changer decision. कि as soon as they stepped out of upset quota, कुछ बातें कागज पर नहीं उतरती, उन्हें सुनना पड़ता है. एंड सम वॉइसेस डोंट जस्ट इन्फॉर्म, दे इंस्पायर, दे इग्नाइट. वेलकम टू द प्लेटफॉर्म वेयर आइडियाज मीट इनोवेशन, जहां हर एपिसोड बनता है एक नई कहानी का हिस्सा. ये है एक्सपो मीडिया टॉक्स, जहां बात होती है इन लोगों से जो बना रहे हैं कल का इंडिया. द पॉडकास्ट दैट सेलिब्रेट्स थिंकर्स, क्रिएटर्स एंड गेम चेंजर्स ऑफ टुमारो. I'm your host and host Reena, and today we have got something truly electrifying lined up for you. Our special guest, none other than the incredible team from GC, Mandeep Matharu, the minds who are transforming blueprints into breakthroughs. This group is setting benchmarks that speak louder than numbers. So plug in, lean back, and get ready to dive deep into the stories that matter, conversations that move, and minds that build the future. Let's welcome the change maker, the builder, the dreamers. Please join me in the welcoming the Guru Nanak Engineering Group, the member Mandeep Matharu. Hello, sir. hi, how are you? I'm great. What about you? Very good. Okay. So my audience wanted to know about you. Who is Mandeep Matharu? What exactly GS is and what they do? All right. So, like you said, my name is Mandeep Singh Matharu. I am heading the domain of marketing at GEC. Okay. So, the full form of GEC is Guru Nanak Engineering Company. So, we have been in business since 1952. And to tell you what we do, we are basically mechanical engineering contractors. And we serve industries like chemical, cement, power, oil and gas, so on and so forth. Okay. And we are situated in Kota, so that's our head offices. Okay. So, in a nutshell, that's what we do. Okay. So let me tell you guys कि मैं Mr. Mandeep से मिली थी Indian Energy Week में. I'm right, sir? Yeah, correct. And we covered him and we explored lots of things about your company and Yeah. you told lots of things that it's been since 1952, right? Yes. So can you please tell me about GC कि 1952 से जो अब तक की जर्नी थी कैसी थी in short? All right. So, since 1952, it's like very clear कि ये जो company है, ये दो generation old है. Like I'm the third generation in. Okay. So my Dadaji was the one who established this particular company. And to tell you how it started, like after the partition happened, so my Dadaji was in Rawalpindi, Pakistan. So when the partition happened, he came from Rawalpindi to Bundi. So Bundi is near Kota. And then from Bundi, he came to Kota. So in the Britishers era, when, before independence, so he was working in a British company over there. So jaise hi partition hua, he came over here and he started making automobile parts. So basically he was making the differential for trucks. So कैसे बनाते थे? So he used to take the old weapons, जैसे कोई गन होगी, कोई तोप होगी, उसका जो बैरल होता था उसको निकाल के he used to use it in the truck differential. So उससे ऐसी जिनके भी डिफरेंशियल लगाए जाते थे, ऐसा हो गया था कि उनका नाम था सुरजीत सिंह जी. सो वो कहते थे कि सुरजीत सिंह जी से अगर आप डिफरेंशियल लगाओगे तो टूटेगा नहीं, क्योंकि वो एक स्पेशल मटेरियल का बनता था, बिकॉज वेपन का बैरल से बनता था. सो दैट्स हाउ ही गॉट इनटू ऑटोमोबाइल. And then from automobile, he started into this particular domain, that is mechanical engineering contracting. So that's how we got into business since 1952. Then came my father and my uncle. So now I'm working with them. So I'm the third generation and I'm heading the marketing domain over there. So yeah. That's great. So you told me that you're the third generation. Yeah. How's the experience with them right now? Well, it's definitely a struggle because एक generation gap आ जाता है. So the way they look at things is very different from the way we look at things, because definitely there's a big gap in the mindset. And how you decide your goal and visions and everything, because three different generations are working together. So how do we come at one particular place? Yeah. So that's how it is, that उसके लिए वो चाहिए होता है. Like you need to have that openness to understand each other. In terms of them, I would say वो थोड़ा हमको समझता है, I would say मैं उनको थोड़ा समझता हूँ. So that's how we come at a common place and then we execute things.
That's great. We'll be going with 3 different steps, and the first will be the normal podcast questions. The second will be the rapid fire, and the third one will be the inspiring one. All right. In between, we can mix also, not an issue. So I'll go with the very first question that your company is since 70 साल पुरानी company है, right? ये Yeah. और काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज के साथ आप काम भी कर रहे हो. जस्ट टेल मी आपकी इनोवेशंस और बिजनेस में किस तरीके से आप इंटीग्रेट करते हो ये. ओके, सो लाइक यू सेड कि 3 जनरेशन ओल्ड है कंपनी. सो आई वुड से कि हम किस तरीके से इनोवेट करते हैं, उस आई वुड से कि 3 तरीके से हम इनोवेट करते हैं. ओके. फर्स्टली इज हम इनोवेट करते हैं थ्रू कंपटीशन. सेकंड इज वी इनोवेट थ्रू onboarding different type of talents, and third is we innovate through our clients. Okay. So what I mean by that is कि let's say if we are in a common place where we are working together and we number of clients so same here, the amount of business is more or less the same, so we have to compete with other clients. So how we innovate is कि अगर एक हमारा कॉम्पिटिटर है जो कि हमसे बेटर सर्विस दे पा रहा है एंड वी अंडरस्टैंड कि अच्छा दैट्स अ कॉम्पिटिशन दैट उसने बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर ले रखा है हमारा, so we are forced to I would say innovate in order to cater to the same client. So that's first. Second thing is कि client हमें force करता है to innovate. What I mean by that is कि हम जब भी हमें इंक्वायरीज मिलती हैं कि फॉर एग्जांपल अडानी ने हमें एक इंक्वायरी भेजी कि दैट इट्स अ टास्क दैट वी आर सपोज टू डू, ये मैकेनिकल का काम है. सो उनका एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल होता है जिसे कहते हैं हम क्वालिटी एश्योरेंस प्लान. वो चाहते हैं कि हम जो भी काम करें एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड, एक सेट ऑफ क्वालिटी से करें एंड वी हैव टू अडर टू इट. So that's how we adapt to their particular demands in terms of innovation. And third thing is, like I said, onboarding new talent. Like we have spoken before, कि 3 generation old है. So what we do is when we onboard talent from the market who comes from different sort of experience, जब हम उन्हें onboard करते हैं, so they bring different skills and sets, you know, with whom we work together. Okay. So इस तरीके से we innovate. That's great, by the way. Okay, so the next question is कि like you deal with Reliance, Adani, Tata Power like your clients and your companies, right? Yeah. So आप उनके साथ जो clients जो relationship आप maintain करते हो वो कैसे करते हो और कैसे उसको build करते हो और ज़्यादा? It's very simple. I mean, Just a suggestion and just... Yeah, 100%. I mean, when I look at, you know, when I talk to people, when I look in the market, लोगों का idea होता है कि हमें बेचना है, चाहे हो और by crook. But the reality of the situation is तुम किसी को बेच दोगे, कोई घटिया प्रोडक्ट बेच दोगे, वो one and the last time होगा. उसके बाद कोई तुम्हारे पास आने वाला है नहीं, because the customer is very smart, they feel betrayed. And similarly is with these big clients. Okay. So the only way we are able to sustain and maintain these type of relationships is by giving them A-class quality. So whatever services and whatever equipments we give it to them, they last for a very long time. Okay. So they are very impressed with the type of quality that we give it to them, and that's how we maintain a relationship with them. Oh. Because they don't want to let us go. Okay. The best experience like you had with any of the clients or any of the company or your parents or your grandparents? Yeah. Can you please tell me? Okay. So जैसे मल्टीपल क्लाइंट्स हैं हमारे, उसके अंदर से हमारा एक क्लाइंट है हिंदुस्तान जिंक. Okay. So just to put things into perspective, Hindustan Zinc is under Vedanta. Okay. So Vedanta Limited is managing that. तो Vedanta क्या प्रोड्यूस करता है? They produce zinc, lead, and now they're also going into copper. Okay. So zinc and lead they produce करते हैं, and world का largest zinc smelter is in Rajasthan. That is under Vedanta. Okay. So उनका एक plant था जिसके अंदर what they used to do is, basic फंडा क्या है, how they make let's say zinc, कि एक ore लेते हैं माइनिंग करके and then they crush into smaller pieces. Okay. बहुत बड़ा क्रशर होता है उनका. उनका एक क्रशर था जो कि बहुत टाइम से उनको प्रॉब्लम दे रहा था. जिस कंपनी ने उनको क्रशर दिया था वो खुद कह रहे थे कि ये क्रशर अब खराब हो चुका है, हम इसको रिपेयर भी नहीं कर सकते हैं, सो बेटर यू रिप्लेस इट. बट अगर हम बात करते हैं रिप्लेसिंग अ क्रशर, इट्स फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी इट विल कॉस्ट 20 to 30 करोड़, से मे बी मोर, 50-60 करोड़ का तुम्हारा एक क्रशर आता है. सो इन कंपनी के बजट्स होते हैं, अब उस बजट के हिसाब से दे नीड टू से रन द मेंटेनेंस प्लान्स. सो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो दे कॉल्ड अस अप कि भाई ये दिक्कत है, हम बहुत टाइम से कोशिश करते आ रहे हैं, हमने डिफरेंट कंपनी से काम करा के देखा है, बट इट्स नॉट वर्किंग. सो आप एक बार आके you please take a look. And it was, I believe, 1.5-2 साल पहले की बात है ये. And that particular crusher जो कि इतने सालों से उनको परेशानी दे रहा था, we repair that particular crusher in just matter of 5 days. बस 5 days की बात है जब हमने पूरा crusher उनको रिपेयर करके दे दिया. And in return the whole mechanical department, you know, starting from the bottom-most person to the CEO level, so they basically called us up to give us the appreciation plan. I mean, they gave us the appreciation कि इतने टाइम से हम कोशिश करते आ रहे हैं, इसको रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं,
आपने हमारी बहुत सहायता कर दी, आपने इसको रिपेयर कर दिया. So that was a time when, you know, we felt very proud of our capabilities. That's great. Okay, so this was such a great answer, by the way. So I'm having lots of questions in my mind also, apart from papers. Yeah. कि like आप मुझे बता सकते हो कि what are the benefits and non-benefits, advantages and disadvantages कि अपनी family business को join करने का? Yeah. Okay. So advantages. It's ये not tough. No, it's not. It's Okay. so advantages ये हैं कि I mean तुम्हें एक platform मिल जाता है from where you can start your career. Okay. Exactly. So I mean before joining this business, I was working in Mumbai. So I mean I've worked for like 3.5 years in Mumbai, and then I came and joined because ये मेरा पर्सपेक्टिव था कि भाई बिफोर आई जॉइन द फैमिली बिजनेस आई शुड ऑल्सो हैव दैट मच अमाउंट ऑफ कैपेबिलिटीज दैट आई कैन कंट्रीब्यूट टू द फैमिली बिजनेस एज वेल. क्योंकि अगर मैं एकदम ग्राउंड जीरो से आता हूँ, सो आई बिकम लाइक द ओल्डर जनरेशन. there's No nothing experience. yeah there's nothing that I add to that particular race. So advantages ये हैं कि definitely एक तुम किक स्टार्ट मिल जाता है, and you have much more leverage to make decisions because business के अंदर क्या होता है, everything is capital extensive. I mean तुम्हें कोई भी decision लेना है उसके लिए पैसा चाहिए. So अगर एक well established family business है, then that gives you freedom to take decisions in terms of expenses. तुम एक heavy investment करके भी you can go ahead, but वो एक individual level पे नहीं कर सकते हो because तुम्हें खुद से सब कुछ create करना है. Disadvantages ये हैं कि there's a mind gap and एक understanding gap रहता है, क्योंकि वो लोग कहते हैं like for example my father and my ताई जी, they're together. So वो कहते हैं हमें 40 साल इस काम में हो गया, तेरे को 40 दिन नहीं हुए, तू हमें क्या बताएगा, राइट? हमें क्यों सिखा रहा है? हमें क्यों सिखा रहे हो, हमने तो बनाया ही है. तो Okay. दैट्स अ डिसएडवांटेज, बट डेफिनेटली वो धीरे धीरे जैसे टाइम जाता है वो सॉर्ट आउट होते रहता है. उनके लिए कितना इजी होता है आपकी चीजें अडॉप्ट करना? ये कितना मुश्किल होता है डेफिनेटली, हम्म. क्योंकि जो फीडबैक मुझे उनसे मिला है वो कहते हैं कि भाई तुम्हारी जनरेशन बहुत फास्ट काम करती है, ओके. वो स्लो एंड स्टेडी काम करते हैं. सो दैट्स ऑल्सो अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर देम टू अडेप्ट विद मी, क्योंकि मेरे को चाहिए जल्दी जल्दी, उनको चाहिए धीरे धीरे. कभी ऐसा होता है कि नहीं अब तू जा, मुझे नहीं, हमें तो नहीं चाहिए, लाइक यू आर वर्किंग बहुत बार. इन अ डिफरेंट वे? क्योंकि सी इन ऑर्डर टू मेक अ बिजनेस डिसीजन वो होता है ना, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक कंसेंसस बनना चाहिए. ओके. So that's also applicable over here. जब तक everyone is not on board, उसका डिसीजन नहीं लिया जाता है. ओके. ओके, बैक टू द Yeah. पॉडकास्ट ऑफ कोर्स. ओके, सो आपकी जो कंपनी है वो मैकेनिकल सर्विसेज में काफ़ी डाइवर्स एरियाज में काम करती है, राइट? Yeah. लाइक फैब्रिकेशन, एरिकेशन, मशीनिंग. सो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट कौन सा रहता है इन सब में से, Okay. और कौन सा रहा अब तक? See, I mean, every domain के अलग set of challenges है. So हमारे क्या कंपनी के different verticals हैं. So just to give some idea. ओके. एक है हमारा fabrication and erection. That's first. Fabrication and erection means हम कोई भी बड़ा सा equipment हो या vessel हो या storage tank हो, whatever there is, हम उसको from scratch बना के we give it to the client and then establish उसको लगा के देते हैं client को. Okay, so that's one example of fabrication and erection. Second thing is we take orders for workshop outsourcing. So when we go through the podcast, I'll explain what that is. Okay. Then third is we also take contracts for shutdowns and turnarounds. So इसका मतलब कि जो भी industries के basically planned shutdowns and turnarounds होते हैं, जिसके अंदर what they do is कि जो भी maintenance से काम होंगे वो shutdown and turnaround में होते हैं. So हम उसके contract लेते हैं. So that's third. Fourth is in situ machining, a different type of machining का ये domain है. That is very niche. ज़्यादा प्लेस है नहीं इसके अंदर. So that's another domain in which we function. Apart from that, हमारा खुद के machining facility है. So in a bit, that's 5 domains in which we are currently working. And just to answer your question, हर एक domain का अलग challenge है. For example, fabrication का challenge ये है कि in order to cater to big orders, तुम्हें बहुत ज़्यादा purchasing करनी होती है. I mean, तुम्हारा raw material का cost बहुत ज़्यादा होता है. तो that's always a hassle कि अगर हमें एक बहुत बड़ा order लेना है, तो इतना heavy capital investment करना पड़ता है. So that always becomes a challenge कि भाई इतना बड़ा investment करना है कि नहीं है for fabrication and erection. And shutdown and turnaround के अंदर जहाँ पर भी हमें बंदे देने होते हैं, workforce, उसके अंदर हमें दिक्कत आती है बंदे procure करना. क्योंकि आजकल क्या होता जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल एक वेल्डर है या एक मैकेनिक है, whatever. I mean, हाथ से काम करने वाले जो क्राफ्ट हैं वो खत्म होते जा रहे हैं. Exactly. क्योंकि हमारे कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे जो हैं दे आर डूइंग MBAs, दे आर डूइंग लेट्स से Yeah. मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बट हाथ से काम करना नहीं आता. सो इनफैक्ट ये दिक्कत बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है राइट नाउ इन द मार्केट कि कंपनीज को लोग नहीं मिलते हैं हाथ से काम करने वाले. तो दैट्स अ चैलेंज टू प्रोक्योर द राइट टैलेंट. तो दैट्स सेकंड.
एंड इन सिटू मशीनिंग हो गया, उसके अंदर हमेशा एक क्वालिटी का इशू आता है दैट व्हेनेवर वी हैव टू केटर टू दैट पर्टिकुलर जॉब, बहुत हाई सुपरविजन की ज़रूरत पड़ती है. सो एवरी डोमेन हैज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंज. दैट्स ग्रेट. ओके, अभी एआई बहुत ज़्यादा हाइक पे चल रहा है, राइट? Mm-hmm. काफ़ी ट्रेंडिंग है और लोग उसको अडॉप्ट भी करना चाहते हैं, बट लोगों को पता भी नहीं है. Yeah. मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या ऐसा सच में है कि एआई हमारी जॉब लेकर जा रहा है? Okay. या फिर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि अगर ऐसा कुछ है तो वो कैसे, एज पर योर फील्ड और Yeah. आपके अकॉर्डिंग, Yeah. और आपकी फील्ड में जीसी में एआई किस तरीके से वर्क करता है, Yeah. और क्या बेनिफिट्स हैं आपके लिए और क्या डिसएडवांटेजेस हैं Okay. आपके एम्प्लॉयज के लिए? Okay. So see, AI definitely a lot of chunk of the job market will definitely be catered by AI. हाँ, अगर हम मैकेनिकल की बात करें, सो फॉर एग्जांपल अगर हम मास प्रोडक्शन की बात करें, जैसे एक कार मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, उसके अंदर मास प्रोडक्शन हो जा रहा है, एक सिमिलर टाइप ऑफ टास्क होता है दैट जो हर एक मशीन करती है, दैट्स फिक्स्ड. तो उस केस के अंदर ऑटोमेट कर सकते हैं थ्रू एआई. जैसे अगर किसी कार का कोई सेट ऑफ पार्ट है जिसको वेल्डिंग करना एक ही तरीके से, यू कैन पुट रोबोटिक वेल्डिंग आर्म्स एंड देन यू कैन ऑपरेट इट थ्रू एआई. Everything can be automated. So that is applicable in the mass manufacturing mechanical firms. Okay. हमारा काम क्या है? हमारा mass manufacturing नहीं है. हम everything that we make is different. जो client का requirement होता है वो हम cater करते हैं. जैसे for example हमारे कैसे applicable हो सकता है AI? Fabrication के अंदर we can definitely inculcate AI in terms of cutting and welding. But हमारा जो बहुत बड़ा डोमेन है दैट इज मेंटेनेंस, जैसे शट डाउन एंड टर्न अराउंड, उसके अंदर हम एआई नहीं ला सकते हैं. क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपके घर के अंदर एसी का फ्लॉ आया है या आपको प्लम्बर की ज़रूरत है, एआई उसको सही नहीं कर सकता. यू नीड अ पर्सन हु हैज़ दैट स्किल्स, जो खुद के हाथों से कर सके. Exactly. उसको ऑटोमेट नहीं कर सकते हम. उस केस के अंदर हमारा बहुत बड़ा चंक है जो हमें आई बिलीव टिल इन्फिनिटी हमें थ्रू ह्यूमन एफर्ट ही करना पड़ेगा. Okay. सो या So any feedback from the employees कि हमें ये एआई के लिए इस काम के लिए एआई चाहिए या फिर नहीं चाहिए? सी आई मीन हमारी दो टीम्स होती हैं. एक होती है टेक्निकल टीम जो कि साइट पे जाके काम करती हैं. एक होती है कमर्शियल टीम. कमर्शियल टीम के अंदर वी कैन डेफिनेटली इनकलकेट एआई. जैसे हमारी मीटिंग्स में बात होती है कि भाई कैन वी इनकलकेट एआई इन अ डेली मैनेजमेंट वर्क, दैट इज ए कमर्शियल ऑफिस. वी कैन डेफिनेटली डू दैट. हमारी वो टॉक्स आजकल चालू हैं, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द टूल्स. Okay. बट ऑन साइट अभी इतना हमारा बात नहीं हो रहा है यार पे, बिकॉज अगेन लाइक आई सेड सारी चीज़ें हाथों की काम है. यू नो व्हाट वी डू. So yeah. Okay, that's great. Okay, so then my next question is कि Middle East of Office, दुबई. Yeah. Okay, आपके इंटरनेशनल एक्सपेंशंस हो रहे हैं और आप कर भी रहे हो, तो क्या लगता है कि मतलब जो ग्लोबल मार्केट है उसका विजन क्या आपके लिए और कैसा रिस्पॉन्स है उनका आपकी तरफ? ओके, सो हमारा दुबई के अंदर हमारा ऑफिस हमने रजिस्टर किया हुआ है. द गुड थिंग अबाउट व्हाट वी डू, द गुड थिंग अबाउट व्हाट वी डू इज कि अब इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो है दैट इज द पॉपुलेशन, Yes. एंड दैट टू हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूथ इज इन इंडिया. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे भी हम जिस डोमेन के अंदर हैं, जिसके अंदर हमें मेंटेनेंस का काम करना है, हमें शट डाउन करना है, टर्न अराउंड करना है, उसके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्कफोर्स लगता है. इनफैक्ट मिडल ईस्ट हो गया या ऑल द अदर फॉरेन कंट्रीज, दे आउटसोर्स द टैलेंट टू द इंडियन सप्लायर्स. सो इंडिया से बंदे जाते हैं वहाँ पर काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर लोग ही नहीं है. आई मीन जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, आई वॉज इन बुडापेस्ट, सो आई वेंट देयर ऑन एन एक्सचेंज, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम. तो हमारा जो टीचर था बुडापेस्ट के अंदर, ही वॉज PhD. तो वो मुझे ये कहता, सो आई वॉज डिस्कसिंग यू नो सब्जेक्ट्स विद हिम. तो वो मुझे कहता कि मैंने PhD करी हुई है, बाहर एक आदमी बैठा है जो कि ब्रिक लेइंग का काम कर रहा है, बट वो मेरे साथ पैसा कमा लेता है. तो मेरी एजुकेशन में क्या फ़ायदा है? मेरे को तो ब्रिक लेयर बन जाना चाहिए था. मेरा लाइफ, माई क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होना है. एंड दैट्स द रियलिटी ओवर देयर कि धीरे धीरे वो काम खत्म होते जा रहे हैं. एंड in terms of opportunity, what we have is right now, okay, we can outsource this huge amount of the workforce that we have, and we can send it to overseas countries to work. हमने अभी कजाकिस्तान के अंदर भी कंपनी खोली है. We have a company in Dubai as well. Okay. So now we are rapidly working in order to get orders over there and send people from India to work over there. So the response is good. They have a huge amount of demand, huge. Okay. क्योंकि हमने एग्जिबिट भी किया था एडीपेक के अंदर. Okay. ऑल द मेजर कंपनीज दे आर लाइक कमिंग टू अस कि भाई प्लीज हेल्प अस आउट, हमें बंदे नहीं मिल रहे हैं इधर, हमें बंदे दो तुम्हारे. Okay. सो दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन हु इज लिसनिंग That's to great. probably make a career in this. So you were there in the COVID time? In the Yeah. GSC. Okay. Yeah. So definitely I'll be asking question in this COVID duration का Yeah. time जो था. Yeah. काफी
वर्स्ट सिचुएशन थी सबके लिए. सो जो कोविड के बाद जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो चेंजेस आए हैं और जो Yeah. इम्पैक्ट हुआ, मतलब जीसी उस पीरियड ऑफ टाइम में अपने आप को किस तरीके से उसने मैनेज किया, क्या ऑपरेशंस, क्या चीज़ें यूज हुई? See, अब लाइक wherever, I mean, अगर हम हमारे डोमेन की बात कर लें हम, कि यू कैन नॉट ऑटोमेट दिस. अब रही बात कोविड की, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी सबको चाहिए. मतलब सर्टन नेसेसिटीज हैं दैट यू कैन नॉट स्टॉप कम्प्लीटली. ठीक है, यू कैन डू वर्क फ्रॉम होम, बट यू कैन नॉट रन अ पावर प्लांट फ्रॉम वर्किंग फ्रॉम होम. यू नीड टू Yes. बी प्रेजेंट देयर एंड फिजिकली वर्क. तो सो इन कोविड टाइम व्हाट हैपेंड इज कि इंडिया के अंदर लैक ऑफ वर्कफोर्स आ गया था, क्योंकि इतना ज़्यादा अनसर्टिनिटी था सबके दिमाग के अंदर, हमारे खुद के दिमाग में था कि ये क्या चीज़ है कि इंडस्ट्रीज के अंदर बंदे मिल नहीं रहे थे टू वर्क. सो उस टाइम पे फॉर्चुनेटली हमारी वर्कफोर्स ने हमारा साथ दिया, एंड हमें डेफिनेटली वी गॉट ऑर्डर्स ऑन अ हायर रेट. वी वर एबल टू रिवॉर्ड देम मच मोर, एंड दे डिड वर्क ड्यूरिंग कोविड. एंड इनफैक्ट आई वुड से कि कोविड के अंदर हमने ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी कमाया, क्योंकि ऑल द अदर कॉन्ट्रैक्टर्स दे रन ऑफ, एंड काम तो करना है तो दे आर विलिंग टू गेट वर्क डन फ्रॉम अ पार्टी बी और पार्टी बी और अ पार्टी सी. उस केस के अंदर फॉर्चुनेटली वी वर देयर, सो वी डिड इवन बेटर इन कोविड, आई वुड से. Okay. सो या. That's great, and I think it's good for you कि मतलब बाकी सब लोगों के लिए बहुत problematic था, but still anyway you survived and everything was great. Yeah. That's Yeah. great. Okay, so my next question to you is like आप GC में काफी टाइम से हैं, मतलब Yeah. like your parents and great उनको देख रहे हैं, not as an employee but Yeah. with a part of GC. Yeah. सो ऐसी कुछ मैसेजेस आपके कुछ ऐसी स्टोरी है जो काफ़ी इंस्पायरिंग हो, जिसमें आपने स्ट्रगल फेस देखा अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स का या फिर खुद का या Yeah. किसी एम्प्लॉय का, और वो आखिर लास्ट में एक सक्सेसफुल स्टोरी बनकर बाहर आई हो. सो एनी Yeah. ऑफ देम? Yeah. Many examples. So if I talk about this example from my, let's say, parents' perspective. ओके. Okay, so let me put things into perspective for you even better. So when my grandfather came into this business, उनकी एक छोटा सा कारखाना होता था, स्मॉल शेड, जिसके अंदर वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करते थे. So अब now we have roughly 1600 employees all across India and working roughly 25 places पे we are working all across India. So from that particular point, we started off and here we are. So iske definitely to come at this particular point, there were huge set of challenges. And even I remember that when I was a small kid, there were definitely a lot of financial struggles, a lot of, there was a lot of tough times that we faced. But I would say कि एक अच्छी चीज़ हुई हमारे साथ, that you know my father and my uncle, they took this decision कि भाई हम कोटा में तो काम करते हैं, हमारी अच्छी इमेज है क्लाइंट्स के सामने, हम इसे कोटा के बाहर करेंगे. So that was a game changer decision. कि as soon as they stepped outside Kota, so a lot of work started to come in. क्योंकि कोटा being a small city, तुम्हें इतना कवरेज नहीं मिलता है, इतना काम नहीं होता है. So then when they started to expand, तब पता चला कि a lot of opportunities there all across India. So that's how they grew the business. And now our effort is to do the same overseas. जैसे हम कोटा से बाहर निकले थे, our effort is to just step outside India and do the same thing over again, because it has been proven. Join GC? Okay, because ever since I was a small child, I always saw my dad working a lot in this particular domain, and Okay. it was very inspiring for me that he used to get up early in the morning, go out, and then maybe come after 2 days, because that there was a lot of struggle involved. So that was very inspiring for me. So I would say कि बच्चों का प्रोग्रामिंग हो जाता है बचपन से ही in the environment they are living in. So मेरा प्रोग्रामिंग वैसे हो गया था कि भाई मेरे को करना तो यही है. So that was very perfectly Somebody fixed. told you like your friends कि नहीं तो पापा का ही बिजनेस संभालेगा, या ये आपके मन में खुद से आया कि नो आई विल बी हैंडलिंग माय पेरेंट्स बिजनेस? नहीं, वो खुद से आया, बट वही है ना कि लोग तो कहते हैं कि तेरे डैड का बिजनेस है, तेरा क्या, तू तो वहीं चल जाना. So why do you have to go and do job and struggle? Why didn't you try it? But Oh, no, I did work. I mean, like I said, like 3.5 years I've worked. okay. But then I understood that अगर मैं और ज़्यादा काम करता हूँ in a particular job, इतना ज़्यादा value addition नहीं होने वाला है मेरे में. It's better if I go and join my dad. The amount of learning and the amount of exposure that I'll have would be very beneficial for me. So that was the time when I realized कि अब चले जाना चाहिए join करने के लिए. So yeah. That's great. Now the next we'll be going for the rapid fire round. So are you ready? Yeah. Okay. GC किसी कौन सी प्रोजेक्ट आपने जो किया है जो सबसे ज्यादा आपको पसंद आई and you loved the most and काफी हार्ड वर्किंग भी था? Any one project. Okay. So in fact, हम अभी एक प्रोजेक्ट currently execute कर रहे हैं for Hindustan Zinc. So it's a very unique project because उनका एक बहुत बड़ा रोस्टर फर्नेस है. So basically
वो फर्नेस में होता क्या है, दे पुट द ओर इन एंड उसको बेसिकली इट्स अ भट्टी, बहुत बड़ी भट्टी है वो, हिंदुस्तान जिंक की, Yes. ठीक है. दैट्स अ प्रोजेक्ट दैट आई एम लविंग अ लॉट. रीजन बीइंग इज क्योंकि अभी तक का जीईसी की हिस्ट्री के अंदर ये हमारा सेकंड हाईएस्ट वैल्यू वाला ऑर्डर है, एंड द क्वांटम ऑफ वर्क जो कि उसके अंदर है, दैट इज अ लॉट. आई मीन हमारा जो फैब्रिकेशन यार्ड है वो 3/4 इसी के काम से भरा हुआ है, क्योंकि इट्स अ लॉट ऑफ वर्क इन्वॉल्व इन दिस, Okay. एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स यूज होते हैं. अगेन दैट द टेक्निकल साइड, बट this is something that I'm very impressed with, that this is the type of furnace that we are making right now. Okay. Apart from this, any one project which you can remember any time and जिससे आप पीछा ही नहीं छुटा सकते अपना, like अगर आप रात में सो भी रहे हो Yeah. around 3 something, Yeah. मतलब वो प्रोजेक्ट अगर याद आ जाए तो आपको नींद भी नहीं आएगी. बेस्ट वन आई एम टॉकिंग. Okay. वर्स्ट वन. Okay, see, अपार्ट फ्रॉम दिस. yeah, best one is definitely हमारा क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे कहते हैं एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट. करंटली हमारा रिलायंस के साथ है. आई वुड से कि रिलायंस इज द बिगेस्ट क्लाइंट राइट नाउ. आई वुड से लाइक 60 to 70% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम रिलायंस, एंड हमारा डेली बेसिस पे हमारे 800 बंदे आर डिप्यूटेड ओवर देयर इन रिलायंस जामनगर. सो दैट्स अ प्रोजेक्ट दैट्स आई वुड से इट्स अ कैश कॉ फॉर अस, क्योंकि रिलायंस हर किसी को एंटरटेन नहीं करता है. हमें रिलायंस के साथ काम करने के लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं, हमने बहुत लॉसेस भी खाए हैं इन द इनिशियल फेजेस. बट अभी हमारा 5 year कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है रिलायंस के साथ, कि हम, आई मीन इट्स अ सेकंड ईयर, हमारे 3 साल और बचे हैं रिलायंस के साथ. उसके बाद मे बी वी कैन गेट अ बिगर वन एज वेल. सो दैट्स अ प्रोजेक्ट दैट आई वुड से आई एम वेरी हैप्पी टू टॉक अबाउट. Okay. Describe engineer or engineering in your own word. Well, I mean, it's very simple. I mean, engineering basically means using technology to make life easier for people. As simple as that. This one. As simple as that, yeah. Okay. Yeah. सबसे ज्यादा डिमांडिंग क्लाइंट कौन से थे? Yeah. You know, नखरे उठाने वाले जिनके आपने नखरे भी उठाए. If you don't want to take a name, you can give a hint to us. Well, I mean, I definitely cannot take the name, but I would say कि हर एक client बहुत demanding होता है, क्योंकि see, The most one I want to know. I'll give you one example, like किस तरीके से they are demanding. For example, अब आपका एक पावर प्लांट चल रहा है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, और उसकी डिमांड तो अप एंड डाउन होती रहती है. आप यू कैनॉट स्टॉप योर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट लेट्स से आपके 2 ऑपरेशनल लाइन्स हैं, जिसके अंदर से एक पहले से खराब चल रही थी, दूसरी भी फेलियर में आ चुकी है. ऐसा कुछ सिचुएशंस यू कैन हैव विद, लेट्स से विद मे बी जिंक प्रोड्यूसिंग कंपनीज, मे बी विद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंपनीज, मे बी केमिकल. उनका प्रोडक्शन नहीं रोकना है हमारा, उनका मतलब. सो जब ब्रेक डाउन होता है, तब पूरी की पूरी टीम कंपनी की वो पावर उठा के ले आती है हमारे पास, और फिर मैं छोड़ती नहीं है, चाहे वो रात हो दिन हो. वो वहाँ के जो बड़े बड़े इंजीनियर्स होते हैं, मतलब आई वुड से लाइक टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स, दे कम टू आवर पर्टिकुलर वर्कशॉप एंड हमारे सामने बैठ के वो बोलेंगे कि भाई हमको तो सही करके दे, जब तक सही नहीं करके देगा हम ऐसे जाएंगे नहीं. सो दैट बिकम्स अ, आई वुड से, हैसल फॉर अस, क्योंकि वर्क डिमांड्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, डिमांड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट देन वो एक पर्टिकुलर उसके साथ आता है, एक बिलीफ के साथ कि आप हमारा ये इक्विपमेंट सही करो, तब उसके पहले हम जाएंगे नहीं. So that's a type of work. Okay, the last but not the least, for the rapid fire, I'll be asking in parts. The first part will be that what are the 3 best machines which you have, and जो आप लोगों को भी मतलब recommend करना चाहोगे कि you should definitely use this, जो आपने GEC में यूज किया है, which is not for your personal but for everyone. The second part will be like अगर आप कभी GEC के अंदर जब आप जाते हो, Yeah. ऐसा कभी हुआ है कि आपको खुद मशीन चलानी पड़ी हो Yeah. और वो आपको आता ही ना हो? Okay. So answering our first question, 3 machines that I would say definitely, one would be the lathe machine. Basically, we call it the mother of all machines. So that is there. Second is rolling machine. Yeah. So basically, rolling machine use करते हैं to roll the plates. That is second. Third, I would say we call it VTL, vertical turret lathe machine. So these are, I would say, and I would say fourth more as well, just to boring machine. So these 4 machines I would say are the lifeline for our GC fabrication unit. Okay. And like your second question कि खुद से मशीन चलानी पड़ी, okay, ये इंसिडेंट्स अब नहीं होते हैं, बिकॉज सिंस नाउ वी हैव ग्रोन इन अ वेरी बिग वे. हमारे पास एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं एंड विद डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स. बट आई वुड से ये काम पहले होता था व्हेन माय डैड वाज इनटू बिजनेस. खुद भी मशीनें चलानी पड़ती थी, क्योंकि जब तक खुद नहीं जानोगे तो दूसरों को क्या सिखाओगे. But any funny incident like आप गए हो बट आपको चलाना नहीं आता and then you are getting something from father like तुझे ये नहीं आता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ. आज तक नहीं हुआ ऐसा. और आई You मीन don't want to share with us? नो, रियली Okay. आज तक तो नहीं हुआ ऐसा.
So we are done for the rapid fire round Yeah. now, and we'll back to the questions. That the next question is कि GC Mhm. का जो CSR होता है, Mhm. इसकी जो सस्टेनेबिलिटी होती है, उसमें आप किस तरीके से इनिशिएटिव लेते हो? Yeah. एंड क्या आपकी जो कम्युनिटी है वो इस एंगेजमेंट में या एनवायरनमेंट में फोकस करती है या इसमें इन्वॉल्व हो पाती है? Yeah. So CSR का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लाइक either your turnover should be 1,000 crores या या आपकी कंपनी का जो वैल्यूएशन है दैट शुड बी 500 CR और आपका प्रॉफिट 5 CR से ऊपर है। either one of those अगर आप सेटिस्फाई करते हो देन आपको CSR के लिए यू हैव Okay. टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी बेसिकली। सो हम करते हैं, पिछले 2 साल से करते आ रहे हैं हम। हमारा ऐसा है कि हम कोटा लेवल पे वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर CSR। आई मीन जो हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं हम उसके अंदर क्लासरूम अपग्रेड करा है हमने, ठीक है। लास्ट ईयर वी अपग्रेडेड द क्लासरूम्स। लास्ट ईयर वी बेसिकली डोनेटेड अ लॉट ऑफ साइकिल्स टू द गवर्नमेंट स्कूल किड्स। So Okay. that's how we're giving back to the society. Okay, that's great. The next question is, in which industries and in which sector you focus the most, and what are your future plans? And do you want to really explore in that particular way or in any of the way? So हमारे currently major sectors जो हैं, first one is definitely oil and gas. Okay. Second is I think that is a base one. biggest one. Just like I said, Reliance. So just to put things into perspective, Reliance जामनगर का जो यूनिट है दैट वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है। वो आई गेस एक दिन के अंदर 32 lakhs barrels of oil रिफाइन करता है, समथिंग लाइक दैट। सो दैट्स द लार्जेस्ट रिफाइनरी ऑल अक्रॉस द ग्लोब। रिलायंस जो कि मुकेश अंबानी का है। So that's the largest one for us. Second is, I would say, the metal processing plants. For example, zinc producer हो गया, lead producer हो गया. So that's our second, the biggest, I would say. And हम जो currently अब explore करना चाह रहे हैं, हम waste recycling में जाने का सोच रहे हैं. In India, we want to move in that particular direction कि waste recycling वाले unit के अंदर हम घुसे. Okay. And overseas, we're definitely exploring in similar domain like oil and gas and the similar industries that we do over here. Okay, any future goal like you have जो आपका हो, not of GC, Yeah. जो आप GC के लिए लेकर आना चाहोगे, जो आपने खुद भी सोचा हो and that nobody is aware about, but ये podcast के थ्रू उनको पता चल जाएगा? It's very simple. I mean, ये जो हमारा प्लान है टू एक्सपैंड, ये हमारा ही लाइक मेरा ही प्लान है ये कि आई डोंट वांट टू रिस्ट्रिक्ट जीसी टिल इंडिया बिकॉज वी आर सर्विंग ऑल द मेजर क्लाइंट्स। आई मीन इंडिया का लार्जेस्ट पावर प्लांट, इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी, इंडिया का लार्जेस्ट जिंक स्मेल्ट, आई मीन ऑल द लार्जेस्ट जो हमारे इंडस्ट्रीज हम उनको सर्व कर रहे हैं। सो वी हैव द कैपेसिटी टू डू द सेम ओवरसीज। सो मेरा विजन ये है कि गोइंग फॉरवर्ड जीसी कैन बिकम अ ग्लोबल नेम that started from Kota and is an Indian company. Okay. So your manpower strength is 1700 plus, Yeah, right? yeah. So skilled workforce को retain करना, motivate करने के लिए GC क्या strategy use करता है? ओके, सो पहला चीज़ तो ये है कि हम जो स्किल्ड वर्कफोर्स है हम उसको पहले ट्रेन भी करते हैं। आई मीन फॉर एग्जांपल को इंजीनियर है, हम दे गो थ्रू अ रिग्रेस प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। हम उसको उनको 3 महीने तक सिर्फ ट्रेनिंग देते रहते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन मशीन्स एंड हाउ वर्क इज डन। उसके बाद लाइक दे लर्न, आई मीन दे अपग्रेड देयर ओन सेट ऑफ स्किल। बट पीपल हु आर ऑलरेडी स्किल्ड, हमारा ही टारगेट होता है कि उनको किसी भी तरीके से हम ऑनबोर्ड कर सकें। एंड द वे वी मोटिवेट देम, ये मेरा पर्सनल सोचने का प्रोसेस है कि ईदर अ पर्सन इज पैशन ड्रिवन, ईदर दैट पर्सन इज मनी ड्रिवन। आई मीन या तो किसी को बहुत सारा पैसा कमाना है या किसी को काम इतना पसंद आता है कि उसके लिए मनी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो हाउ आई लुक एट थिंग्स इज कि अ पर्सन हु इज वेरी ड्रिवन फॉर लेट्स से द पैशन, उसको और सेट ऑफ चैलेंजेस दिए जाए ताकि उसका जो आई वुड से इंटेलेक्चुअल स्टिमुला है वो मिलना बहुत जरूरी है। Okay. So that's the first thing how we motivate these people. We give them more responsibilities that internally give those people happiness. Second is people who want to earn a lot of money and who are very highly skilled, we incentivize. Okay. Basically, the better you perform, the better your incentives are. And so we try to mix both of these things. Okay, that's great. Okay, anything else apart from this, like I have not covered, might be. So you wanted to add anything about GC या कुछ आप suggestion से कुछ चीज़ें देना चाहोगे? Then I'll be coming to next step. So in situ machining is something जिसके ऊपर हमने थोड़ी बात नहीं करी है. So basically in situ machining is a very niche domain Okay. of machining. Like I said कि मैंने एक्सप्लेन किया वर्कशॉप आउटसोर्सिंग के अंदर हम ही लोगों के पास चल जाते हैं, बट बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जो निकल नहीं सकते। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बहुत लंबी ऑयल की पाइपलाइन है। ओके, आपको एंड
आप निकालना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसको निकालोगे यू हैव टू स्टॉप द होल ऑयल के पाइपलाइन, देन लॉट ऑफ हैसल, फिर आप वापस से पार्ट को निकालोगे, रिपेयर कर वापस लगाओगे, वापस चलोगे, इट्स अ होल हैसल. Okay. सो ये जो इन सिटू मशीनिंग है, व्हाट वी डू इज वी टेक द मशीन टू द इक्विपमेंट इटसेल्फ. वर्कशॉप नहीं जाता है, मशीन चल जाता है. सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन सिटू मशीनिंग, जिसे हम कहते हैं फ्लेंज फेसेस. सो इट्स अ डिफरेंट सेट ऑफ नीश मार्केट ऑल टुगेदर, जो कि अभी करंटली बहुत ज़्यादा डिमांड में है. ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है इस पर्टिकुलर मार्केट में ऑल अक्रॉस इंडिया, एंड वी आर प्लानिंग टू make it as big as possible. Okay. So yeah. That's great. Okay, so I'll be coming to the business point of view Yeah, कि yeah. अगर किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, डू यू थिंक कि कितने मतलब व्हाट डू यू थिंक कि कितने एक्सपेंसेस लग सकते हैं स्टार्टिंग में, अगर जीसी टाइप की कोई चीज़ें स्टार्ट करनी है, और कुछ आइडियाज़ और कुछ आप रिकमेंडेशंस करना चाहोगे कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स को जो स्टार्ट करना चाहेंगे अपना खुद का बिजनेस? See, I mean, अगर खुद से चालू करना चाहते हैं, सो आई वुड से जैसे एक वर्कशॉप, वर्कशॉप के अंदर डिफरेंट सेट ऑफ मशीन्स होती है. यू हैव जैसे जस्ट टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, आपके पास शेपर होती है, स्लॉटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेथ मशीन्स होती है, ड्रिलिंग मशीन होती है, मिलिंग मशीन होती है, प्लेनर, सो ऑन एंड सो फॉर, डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स होती हैं. जो ये वाला जो बिजनेस कोई करना चाहता है, वो सिर्फ एक दो लेथ से भी चालू कर सकता है. यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ स्पेस. जो मशीनी एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज हैं, दैट कैन अ पर्सन कैन स्टार्ट कि 3-4 लेट डाल ली, एक दो ड्रिलिंग मशीन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. उसके लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यू कैन ऑल्सो रेंट दीज मशीन्स एज वेल. अगर आप बात करो कि आप मशीन लेने जाओ, तो आप सेकेंड हैंड मशीन ले सकते हो. 7-8 लाख के अंदर यू कैन हैव अ स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ योर्स एंड यू कैन स्टार्ट द दिस डोमेन Okay, all by himself or herself. and that's great. Do you have any business idea for the young entrepreneurs which you want to share actually? Well, yeah, one thing that I feel is a lot in demand right now, like I said, skilled workforce provider बहुत ज़्यादा भी डिमांड के अंदर है, एंड देयर आर डेफिनेटली लॉट ऑफ प्लेयर्स. बट ये है कि मार्केट इतना बड़ा है कि इफ अ पर्सन स्टेप्स इनटू दिस पर्टिकुलर डोमेन, डेफिनेटली दे कैन अर्न. Okay. Second thing is I feel scaffolding for industries, that too in Rajasthan, a big loophole है. ज़्यादा पेस नहीं है scaffolding के अंदर. So I feel people who are maybe from Rajasthan want to start their career in this. Scaffolding is the second one. Third thing is this recycling, क्योंकि इतना ज़्यादा वेस्ट निकलता है इंडिया के अंदर. Recycling into that particular waste and turning into a different product altogether is a third domain, I feel. Okay, so any do's and don'ts you have for the entrepreneurs? See, I would entrepreneurship. This is what I feel. Any domain there is, entrepreneur कोई भी डोमेन के अंदर हो, कोई भी सेट ऑफ बिजनेस कर रहा हो, जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो तो सेम ही है. दैट इज इंटेग्रिटी, बीइंग ऑनेस्ट टू योर आर्ट, हार्ड वर्किंग, टाइम मैनेजमेंट, ये तो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं. एंड डोंट्स भी हमें पता ही है कि भाई डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, डोंट गेट लेजी, एंड आपको अपना स्किल सेट को बार बार शार्पन करते रहना चाहिए. बट अगर मैं मैकेनिकल सेट ऑफ पॉइंट से बोलना चाहूँ, एक यंग एंटरप्रेन्योर है जो कि लेट्स एक स्टूडेंट है, मैकेनिकल के अंदर अपना करियर बनाना चाहता है, आई वुड से कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिक टू द बेसिक्स. Okay. जैसे एक स्टूडेंट है जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके जो फंडे हो इंजीनियरिंग के बहुत क्लियर होने चाहिए. स्पेशली इंजीनियरिंग ड्राइंग शुड बी वेरी वेरी क्लियर, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द मैप ऑफ सक्सेस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. इट्स लाइक अगर आपको यहाँ से नोएडा जाना है, यू नीड अ GPS. So it's very similar. Okay, if you need to be successful, you need to learn and read mechanical engineering drawings. Okay. Any 5 qualities जो एक एंटरप्रेन्योर में होना बहुत ज़रूरी है, अगर शायद ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं? Time management, very very 100% sure. Being integral, I would say integrity plays a very big part. And discipline in the sense कि भाई in terms of this कि भाई whatever type of work that you're doing, you should feel कि भाई I'm liable to do this. मन करे या नहीं करे, you have to stick to this. You can say discipline. Fourth is जिस भी डोमेन के अंदर हो, इसके अंदर you have to be the best. जो डोमेन नॉलेज है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपके पास डोमेन नॉलेज है नहीं, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, क्योंकि दैट्स द ओनली थिंग दैट विल मेक यू स्टैंड अपार्ट. एंड फिफ्थ इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन योर स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि लाइक हमने पहले ही बात करी, अब AI आ चुका है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अपग्रेड योर सेल्फ. सो स्लोली यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ अ गेम, क्योंकि वो नहीं करोगे देन मार्केट डायनामिक्स बहुत चेंज होते रहते हैं, यू विल स्टे बिहाइंड. Okay. Do you feel training is the only one thing which is possible for the companies or for the entrepreneurs to do anything great or new? No. Training is definitely a non-negotiable.
But in order to be successful as an entrepreneur or as an employee, you need to have that fire in the belly. And what training can replace? Training can never replace the fire in the belly. Okay. ट्रेनिंग कैन ओनली प्रोवाइड यू पॉइंट ए से पॉइंट बी कैसे जाना है, बट जब तक उस बंदे के अंदर ये नहीं है कि भाई पॉइंट बी से मेरे को पॉइंट जेड तक कैसे जाना है, देन क्योंकि हर बंदे के लिए कहते हैं ना डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज डिफरेंट. किसी के लिए डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज कि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनना है इन द थिंग्स दैट आई डू, दैट्स द फायर इन द बेली. जब तक वो नहीं है, then a person can only go till a certain point. Now that can give that particular person happiness. Nothing wrong in that. But in terms of if you need to be the best in a particular domain, then you need to have that fire in the belly. कि भाई जब तक वहाँ नहीं पहुँच रहा हूँ, कुछ तो गलत है. I was looking at one of the reel. So उसके अंदर आदमी कहता है कि being a billionaire, I mean, earning one billion is very very hard, but earning the second billion is inevitable. उसे कहने का मतलब ये था कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ बिलियनियर, आपने बोला कि भाई पॉइंट ए से पॉइंट 100 तक जाना है मेरे को, सो देयर आपको पूरा कैरेक्टर चेंज करना पड़ेगा आपका. आई मीन यू कैन नॉट थिंक लाइक एन एवरेज पर्सन एंड थिंक दैट यूल बी अल्ट्रा सक्सेसफुल. यू नीड टू थिंक लाइक अ अल्ट्रा सक्सेसफुल पर्सन जिसके अंदर सब कुछ आता है कि भाई टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, Okay. integrity, so on and so forth. So I mean there's a whole character development that you need to go through. So that's what I feel. Do you remember your first day? Yeah. So how was it? और आपने क्या क्या चीज़ें नोटिस की थी वहाँ पे जो अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो सेम है और वो चीज़ आप लेकर चल रहे हो आगे? You planned on that day, you notice something, you know, Yeah. and वो आप अभी भी उसको लेके कैरी ऑन करो. आई थिंक इन फ्यूचर में भी आप वो सेम चीज़ लेकर चलने वाले हो. Yeah, for sure. I mean, when I joined this family business, I was very clear in my head कि भाई I don't need to act like a owner or boss. Okay. I need to think like I'm an employee of the company, Okay. and I need to work with all the employees at the same level. क्योंकि it's like this, that in order to get respect, you need to give respect first thing, and second thing, it's a long journey to. I mean, you can say कि ठीक है भाई, you're the third generation and you have the leverage, but ऐसा नहीं है. I mean, in order to get to be at that particular point, you need to go through a rigorous training yourself. You cannot think of yourself like a king or boss. You need to first prove it to yourself and prove it to other people कि भाई you are worthy of that particular place. So मेरा first day ऐसा ही था. I mean, in fact, I was in the uniform of GEC, going at the shop floor, Okay. talking to all the employees, Mm-hmm. and yeah, I mean, so that was very clear in my head. ओके. सो डू यू थिंक कि हर बिजनेस में ज्वाइन करने से पहले या फिर एक स्टार्टअप से पहले आपको जॉब करना बहुत ज़रूरी है? Yeah, वाई? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी समझना बहुत जरूरी है ओके. कि what it feels like to work under someone. क्योंकि जब तक आप वो नहीं समझोगे, आप ये कैसे समझोगे कि भाई मेरा एम्प्लॉई क्या स्टेट ऑफ माइंड में है, वो सोचता कैसे है, उससे क्या सेट ऑफ चैलेंजेस हैं. सो इन ऑर्डर टू I would say become a boss, you need to first be an employee 100%, because it's like this. In order to I mean, तुम्हें स्टूडेंट बनना पड़ेगा पहले before you can become a teacher. एनी टिप्स यू वांटेड टू गिव टू योर एंटरप्रेन्योर्स जो आपने प्रॉब्लम फेस किया है पर आप चाहते हो वो ना करें? एंड एनी अदर आइडिया, एनी सजेशंस टू वन जो अभी ग्रोइंग एज में, जो अभी स्टूडेंट है बट कहीं ना कहीं सोच रहे हैं एक बिजनेस में आने के लिए? द लास्ट क्वेश्चन प्लीज. Okay, so this is something that I would want to suggest to the young entrepreneurs or people who want to become an entrepreneur, that to keep on sharpening your skills in two particular ways. First thing is you can either sharpen your skills in your domain, that is a non-negotiable, you have to do that. Second thing is you have to sharpen yourself mentally. This kind of, you can say that never giving up attitude, you cannot say no, and failure is a part of life. So that things should not demotivate you or demean you. You have to have that fire in the belly, as well as you need to constantly upgrade and chisel your skills. And if a person is able to do that for a very long time, I mean, success will definitely come to that particular person. ओके, दैट्स ग्रेट. ओके, सो जब आपने जीईसी ज्वाइन किया आई थिंक 2.5 इयर्स अगो या उसके बीच में, 3 years, yeah. हाँ, Yeah. जो सबसे ज़्यादा मतलब एक हैप्पी मोमेंट आपके लिए कौन सा रहा जब आपको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला एंड लाइक यू अर्नड लाइक, मतलब एक कोई इसका एक वर्ड ही नहीं, एक फिगर Yeah. ही नहीं है. If I talk on the different perspective कि मैं अगर रेवेन्यू की बात ना करूं, हम्म. मैं उसकी बात करूं कि भाई
a game changer for us. Basically, what we did is कि when I joined the business, so we did a thorough 2 से 3 महीने का हमने market research किया था. तो जिसके अंदर हमने हर एक डोमेन उठाया. I mean, we explored Australia, we explored Middle East, we explored Latin America as well as Europe. So what we did is कि एक तो होता है your data that is present on the internet. I mean, let's say your like I said कि जो डेटा हमारे पास है इंटरनेट के ऊपर, हमने उस पर रिलाई नहीं करा. सो व्हाट वी डिड इज वी स्पोक टू एवरी डिसीजन मेकर, नॉट एवरी बट अ लॉट ऑफ डिसीजन मेकर्स इन द इंडस्ट्रीज. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट की, वी स्पोक टू हाई लेवल डिसीजन मेकर्स and we had a very qualitative analysis of like what do you think is missing in this particular industry. हमने वो similarly किया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर. After speaking to all of these executives, top level executives, हमें ये समझ में आया कि मिडिल ईस्ट is an opportunity for us where we should go. So after 3 months of thorough market research, we decided कि भाई हम मिडिल ईस्ट के अंदर घुसेंगे और कौन सी सर्विस करनी है. वी ऑल्सो डिसाइडेड कि हम ये पर्टिकुलर सर्विस हम मिडिल ईस्ट के अंदर करने वाले हैं. सो दैट वॉज डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर अस, क्योंकि अगर हम वो नहीं करते तो हम एक्सपेंशन की बात हम नहीं कर पाते थे. सो या For you, what is exactly the success is all about apart from money? सी मनी पर्सनली, सी ये तो एक बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट आई टेल यू व्हाट आई फील कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड. जिसके पास पैसा नहीं है उसको लगता है पैसे से खुशी मिलेगी, जिसके पास पैसा है उसको लगता है कि भाई ऑन द अदर साइड कि भाई मेरे को बेस सिंपल चीज़ें करनी है. आई नीड टू एंजॉय लाइफ, यू नो, आई नीड टू एंजॉय सिंपल थिंग्स इन लाइफ एज वेल. आई मीन वो ये ना कि अगर आपने बहुत सारा पैसा कमा भी लिया, यू हैव ऑल ऑफ दीज यू नो बिलियनियर्स मिलियनियर्स, वो कहते हैं कि यार मनी इज नॉट एवरीथिंग, इंटरनल हैप्पीनेस होना चाहिए. बट दैट इज डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि आई फील हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड. सो फॉर मी बैलेंस इज हैप्पीनेस. कि ऐसा नहीं है कि इवन इफ यू गिव मी अ लॉट ऑफ मनी, ऐसा नहीं है कि मेरे एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं, वो पीछे कलेक्ट होते नहीं है. मेरा एक्सपेंस तो उतना ही है मोर और लेस. अगर वो 100 है उससे कितना 150 चल जाएगा. एक्सपेंस बढ़ने नहीं वाला है. इट विल ओनली क्रिएट अ सेफ्टी ब्लैंकेट फॉर मी. बट मेरे लिए ऐसा है कि आई नीड बैलेंस इन लाइफ. आई नीड टू एंजॉय माई फैमिली लाइफ एज वेल. आई नीड टू हैव अ स्टेबल प्रोफेशनल लाइफ एज वेल. आई नीड टू हैव द लिबर्टी टू परस्यू माई पैशन एज वेल. So on and so forth. So that's basically happiness for me. Balance. GC के लिए सक्सेस क्या और International expansion. that's the, Yeah, क्योंकि इंडिया के अंदर we are well recognized now. We need to expand overseas. that's great. Okay, so GC is all about team. Yeah. But ऐसा कोई एम्प्लॉय है आपके यहाँ पे जो कुछ ऐसी चीज़ की जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ, सक्सेस भी हुआ, आप इससे प्रॉफिट हुआ और आपको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील भी कराया हो? I would say कि from the top management level, but decisions लिए जाते हैं. सारा काम तो through our employees जो कि हमारे लिए काम करते हैं, वो सारा काम, सारा प्रॉफिटेबिलिटी उन्हीं के थ्रू निकलती है, बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद अस एंड उसी के थ्रू निकलती है. सो जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन कि हमारी सक्सेस तभी है जब हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो सक्सेसफुल हो रहे हैं. हमारा काम है जस्ट टू गिव देम द राइट वर्किंग एनवायरनमेंट एंड मेक डिसीजंस ऑन द टॉप. सो हमारे पास 2 एम्प्लॉयज़ हैं. सो बेसिकली दे आर फ्रॉम द कमर्शियल टीम. Okay. One is Mr. Nishant and one is Mr. Gulshan. So these 2 players are very important for the team. बहुत integral part play करते हैं हमारी टीम के अंदर, क्योंकि यही हैं जो कि I would say you can say सेनापति. अच्छा. कि भाई they are always on the front. Okay. Apart from Gulshan, I would also like to take another name. We have हमारा head of estimation team के हैं, head हैं IP Singh. So he is also very well capable Okay. to handle the whole estimation department. So these 3 people are the one who were always on the front. So इन 3 के कारण हमें बहुत सक्सेस मिलती है. वो नहीं होते हैं हम ये कर नहीं पाते. Thank you so much for answering my all the questions. It was a great and I think everyone loved it. So I just wanted to end it that हर मुलाकात कुछ सिखा जाती है और हर बातचीत एक नए रास्ते की ओर ले जाती है. That exactly happens today with me, and that brings us to the end of another inspiring episode of Expo Media Talks, and where innovation speaks about the future listens. A huge thank you to you, Mr. Mandeep, for coming over here and giving your entire journey information just for 30 to 35 minutes. So thanks a lot, and your passion, your purpose was completely different for us. It was something which we want. So thanks a lot. And आपकी कहानियाँ, आपके insights आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है ज़रूर. So thanks. And for those listening, if you felt that spark, share this video.
spread the world, and definitely don't forget to check out our more information on our official website as well as on our channel Expo Media Talks, because innovation begins with the right conversation. So please follow and subscribe and stay connected with us till the last for more episodes and that move minds and shift perspectives. और याद रखिए कि सोच बदलोगे तो दुनिया बदल जाएगी. So think beyond limits because the future is already listening. This is Reena signing off from Expo Media Talks. Until next time, stay inspired, stay unstoppable, stay connected. Thank you.